Hello to my wonderful children. My name is Komal, your English teacher, and here I am again with another video of your English subject. And today we'll be solving and rather finding out the poetic devices of our poem number 4, that is How to Tell Wild Animals. चलो सबसे पहले हम लोग एक बार पोम रिसाइट करेंगे एंड जैसे कि हम हमेशा करते हैं हम लोग राइम स्कीम ट्राई करेंगे फाइंड आउट करने की. If ever you should go by chance to jungles in the east, and if there should to you advance a large and tawny beast, if he roars at you as you're dying, you'll know it is the Asian lion. Chance A. East. Chance and east, are they rhyming? No, they are not rhyming. So this would be B. Chance advance. Similar, right? ये दोनों rhyme कर रहे हैं. Chance advance. तो ये वापस क्या हो जाएगा बेटा? A. East beast. ये क्या हो गया? B. Dine. C. Lion. Dine line C. तो with this particular paraphrase we can simply say कि यहाँ पर क्या है rhyme scheme? A B and C C. Okay. A B C C. Next. Or if sometime when roaming round, a noble wild beast greets you with black stripes on a yellow ground, just notice if he hits you. This simple rule may help you learn the Bengal tiger to discern. Round A, U, B, round ground A, U, B, learn, discern, C, C. Same हो गया A, B, C, C. Next. If strolling forth a beast you view, whose hide with spots is peppered, as soon as he leapt on you, you'll know it is the leopard. 'Twill do no good to roar with pain, he'll only lap and lap again. View A, peppered B, view U, of course same है. Peppered leopard same है. Pain gain C. So same till now children, we can simply say that throughout the poem there is one rhyming scheme which is being followed. And what is that rhyme scheme? That is A B C C. Next. If when you are walking round your yard, अच्छा हम सिर्फ last वाले words देखेंगे. Yard A, there B, hard A, there bear B, guess caress. Same A B C C. If you are walking round your yard, you meet a creature there who hugs you very, very hard. Be sure it is a bear. If you have any doubts, I guess he'll give you just one more caress. Okay, lethal hug of a bear is being talked about. Pray may. A. Plus does. B. Smiles dials. C. So again A B C. Okay, though to distinguish between beasts of prey, a novice might nonplus. The crocodile you always may tell from the hyenas thus. Hyenas come with merry smiles, but if they weep, they are crocodiles. And to the last stanza of this poem, small all A, thing wing B, tree C. And this tells us that throughout the poem, what is the rhyme scheme, children? The rhyme scheme is A B C. Remember it, and if you're not able to remember it, you can simply take out the rhyme scheme with the help of the last words of the particular poem or stanza. अब देखो ये है, the true chameleon is small, a lizard sort of a thing. He hasn't any ears at all and not a single wing. If there is nothing on the tree, 'tis the chameleon you see. चलो अब हम लोग देखेंगे हमारे पोएटिक डिवाइसेस. हम लोगों ने रिसाइट कर ली पोम. सबसे पहले राइम स्कीम, एंड जैसे कि हमने फाइंड आउट किया, इट इज A B C. Rhyme scheme of the poem How to Tell Wild Animals. Next, alliteration.
द सिंपलेस्ट, आई थिंक मेरे सारे स्टूडेंट्स को एलिटरेशन फाइंड आउट करना जरूर आता है. मैम देयर आर टू कंडीशंस. फर्स्ट इज सेम साउंड एंड फर्स्ट पोजिशन. सेम साउंड एंड फर्स्ट पोजिशन. जैसे कि यहाँ पे हमें फर्स्ट एग्जाम्पल में दिख रहा है रोमिंग राउंड, र र, फर्स्ट फर्स्ट. सो दिस इज alliteration, roaming round. Next is he has, her, first first, alliteration. नेक्स्ट इज when walking. देखो जबकि WH से व बन रहा है यहाँ पर, लेकिन यहाँ पे भी साउंड व, यहाँ पे भी साउंड व, और क्योंकि फर्स्ट पोजिशनिंग है तो ये क्या हो गया बेटा, दिस इज ऑल्सो alliteration. देन नेक्स्ट बी बेयर, ब, first first. So again this is alliteration. And a novice might non plus, n, और first position है तो this is also alliteration. So 1 2 3 4 5, there are 5 examples of alliteration in the poem. And कहीं तुम्हें लगे जैसे यहाँ पर है नो नॉन प्लस है, ये नॉन प्लस इट्स नॉट जस्ट दी वन लिटरेरी डिवाइस. इसमें एक और लिटरेरी डिवाइस मैं तुम लोगों को पढ़ाऊंगी, पोएटिक लाइसेंस. सो यहाँ पर जब भी तुम्हें कोई एक पर्टिकुलर लाइन में दिख रहा है कि कोमल मैम ने 2 या 3 लिटरेरी डिवाइस पढ़ाए हैं, एंड एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि टेक आउट, राइट द लिटरेरी डिवाइस ऑफ दिस पर्टिकुलर लाइन. सो मेक श्योर तुम्हें जितने लिटरेरी डिवाइस उस लाइन के पता है, सिर्फ एक नहीं लिखना है, जितने पता है, 2 है, 3 है, 4 है या सिर्फ 1 है, तो जितने भी मैंने तुम्हें बताए हैं वो सारे के सारे लिटरेरी डिवाइस आपको वहां पर लिखने हैं. ठीक है. सो देर आर 5 एग्जाम्पल्स ऑफ एलिटरेशन. नाउ अ वेरी न्यू लिटरेरी डिवाइस जो कि मैंने तुम्हें पोएम के टाइम पे भी बताया था, दैट इज पोएटिक लाइसेंस. अब देखो पोएटिक लाइसेंस क्या है, तुम्हें नाम से थोड़ा सा समझना पड़ेगा. पोएटिक लाइसेंस, a license to change the basic rules in the poetry, to create the artistic effects, to rhyme the lines together. For example, हमने एक word पढ़ा है, when you'll be dine. Do you think dine is a word? dine कोई भी word नहीं है, लेकिन एक्चुअल वर्ड क्या होता है बच्चों, डाइंग है. क्या है, डाइंग. क्योंकि पोएट डाइन को राइम करवाना चाहती थी लायन से, तो उसने कन्वीनियंटली क्या किया, इसका जी हटा दिया ताकि डाइन और लायन क्या कर सके, आपस में राइम कर सके. और यही चेंजिंग ऑफ द रूल्स, यही चेंजिंग ऑफ द स्पेलिंग्स टू राइम पर्टिकुलर लाइंस क्या कहलाता है बेटा, दिस इज व्हाट द पोएटिक लाइसेंस इज. तो यहाँ पर दिख रहा है तुम्हें, डाइंग, डाइंग को चेंज कर दिया, डाइंग को क्या कर दिया, डाइंग. यहाँ पर है वर्ड लेफ्ट. अब देखो लेफ्ट की स्पेलिंग होती है लीप या लीप्ट, यानी कि लेफ्ट हम ऐसे बोलते हैं. ठीक है, दिस इज द स्पेलिंग. लेकिन क्योंकि एक लेपर्ड की स्पेलिंग में ऐसे आता है, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे लेफ्ट करती, यहाँ पे LEAP करती, तो लेपर्ड और ये दोनों अलग शब्द दिखते. इन ऑर्डर टू राइम द फर्स्ट सिलेबल ऑफ द वर्ड लेपर्ड टू दैट ऑफ द वर्ड लीप, पोएट ने क्या किया, इसमें से ए को ही हटा दिया ताकि वो क्या शो कर सके, वो लेपर्ड की डोमिनेंस को शो कर सके, लेपर्ड वर्ड पे, उस एनिमल पे ज्यादा एम्फेसिस करवा सके इन द पर्टिकुलर स्टैंजा. दिस इज ऑल्सो अ प्राइम एग्जाम्पल ऑफ पोएटिक लाइसेंस. एक है ट्विल. ट्विल जैसा कोई वर्ड नहीं होता है. ठीक है, यहाँ पे बेसिकली वो यू विल कहना चाह रही थी कि इवन इफ यू आर गोइंग टू क्राई आउट ऑफ पेन, इवन इफ यू आर गोइंग टू रोर आउट ऑफ पेन, but nothing is going to help you out. Why? Because the beast will eat upon you, and then you'll get to know that it was some sort of a lion or Bengal tiger or leopard or whatsoever. So क्योंकि यहाँ पर जो वर्ड्स नहीं एग्जिस्ट करते उनको एक तरीके से जो रियल में एग्जिस्ट करते हैं वर्ड्स, उनकी स्पेलिंग्स को मोल्ड करके राइम कराने के लिए, एम्फेसिस क्रिएट करने के लिए यूज़ किया है. So this particular literary device is known as poetic license. Let us move to the next poetic device, that is onomatopoeia. मैंने Tiger in the Zoo में भी पढ़ा है onomatopoeia.
क्या था उसका एग्जाम्पल, जल्दी से बताओ मुझे, सब लोग लिख के बताओगे नीचे। आई वेट फॉर 2 seconds. चलो आई वेट फॉर 5 seconds, टिल देन आई कॉफ. कौन सा एग्जाम्पल था ओनोमेटोपिया का, जल्दी बताओ. Yes, you all are absolutely correct. The tiger snarls around the edges of the jungle. Snarling जो word था, snarling at the edge of the jungle. तो वो snarling क्या था, sound of the tiger था. तो जब भी किसी भी तरीके का sound किसी भी poem या literature में आ जाता है, तो sound word को हम किस literary device से जानते हैं, ओनोमेटोपिया. एंड यहाँ पर कौन सा साउंड आ रहा है, द वर्ड रोर, दैट इट विल रोर एंड देन यू विल डाई एंड देन यू विल गेट टू नो इट वाज एशियन लायन. तो यहाँ पे जो वर्ड रोर है, इट शोज द प्रेजेंस ऑफ ओनोमेटोपिया इन द पोएम. लेट अस मूव टू द नेक्स्ट वन, दैट इज मेटाफर. देखो इस पर्टिकुलर चैप्टर, इस पर्टिकुलर पोएम में तुम्हें दिखेगा मेटाफर और आयरनी को बहुत ज़्यादा मिक्स करके पोएट ने प्रेजेंट किया है. जो एग्जाम्पल्स मेटाफर के हैं, कहीं ना कहीं वही एग्जाम्पल्स आपको किसके मिलेंगे, यू विल फाइंड द सेम एग्जाम्पल्स फॉर द आयरनी एज वेल. अब देखते हैं कैसे किन किन चीज़ों में बोला है पोएट ने, यूज़ किया है मेटाफर. सबसे पहले है रोर विथ पेन. यहाँ पर रोर किससे कंपेयर है, क्राइंग से कंपेयर है. और रादर क्राइंग को किससे कंपेयर किया है, रोर से. कि जब आपको कोई एनिमल खाएगा और आप रोने की कोशिश करोगे, आप दहाड़ दहाड़ के चिल्ला चिल्ला के दर्द में रोओगे, लेकिन कोई आपकी मदद नहीं करने आएगा. आपके उस रोने से भी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, वो तो आप पे अटैक करता रहेगा एंड यू विल die. तो roar with pain, the painful voice here is here compared ironically with the roar of a leopard. कि जैसे एक शेर दहाड़ता है, वैसे तुम भी दहाड़े मार मार के रोओगे, लेकिन तुम्हारी रोती हुई दहाड़ को कोई नहीं सुनेगा और तुम्हें तो बीस्ट खा जाएगा. So this is first example of metaphor where the crying of the victim, यहाँ पे किसकी crying है, victim की. The crying of the victim is being compared to that of the roar of a beast. Second, a noble wild beast. देखो wild beast यहाँ पे कौन है, टाइगर, बंगाल टाइगर. अब टाइगर को क्या बोला गया है, नोबल, एक अच्छा एनिमल बोला गया. उसकी उसकी जो ग्लीमिंग फिजिकल अपीयरेंस है वो इतनी सुंदर है, वो इतनी प्योर है, वो इतनी ब्राइट एंड कलरफुल है कि उसको देख के ऐसा लगता है कि बहुत ही नोबल एनिमल है, बट एक्चुअली इट इज़ नॉट अ नोबल एनिमल. तो क्योंकि टाइगर को एक डिग्री ऑफ नोबिलिटी दी है यहाँ पे, तो और ये आयरॉनिक है बहुत, क्योंकि यही नोबल एनिमल अभी आपको खा जाएगा तो कहीं से नोबल हुआ नहीं. इट्स इज वेरी आयरॉनिकल दैट इफ आई से आई एम अ वेरी गुड गर्ल, आई एम अ वेरी गुड टीचर एंड मैं बहुत अच्छी टीचर हूँ और मैं बच्चों को बिल्कुल नहीं डांटती हूँ और मैं बच्चों को बहुत प्यार करती हूँ और मैं क्लास में एंटर करते बिना आपका नाम पूछ के आपको चाटा लगा दूँ. So what is that? That is ironical, right? कि what I presented myself to be and what I did actually was totally opposite. तो आयरॉनिकल है कि वाइल्ड बीस्ट जो एनिमल, जो टाइगर है, वो कभी भी नोबल नहीं हो सकता, बिकॉज इट अटैक्स एंड इट एक्चुअली ईट्स अपॉन इट्स प्रे. तो यहाँ पर एक टाइगर को नोबल नोबिलिटी इज गिवन टू द टाइगर, दैट इज वाई व्हाट इट इज मेटाफर. एंड नेक्स्ट इज caress. Bear's lethal and suffocating hug is compared to caress. देखो हमने क्या किया है, जो बेयर एक्चुअली हग नहीं करता, वो आपको क्लच करता है एंड बाय क्लचिंग इट एक्चुअली टाइटन्स अप, इट स्क्रूज इट सो टाइटर दैट यू विल डाई आउट ऑफ सफोकेशन. लेकिन उस अटैक, उस लीथल हग अटैक को हमने किससे कंपेयर कर दिया है, करेस से, लव से, लविंग एंड जेंटल स्ट्रोक ऑफ टच से हम लोगों ने कंपेयर किया है बियर के लीथल अटैक को. वो एक्चुअली हग थोड़ी करता है, उसका लीथल attack is being compared here to a hug, or rather we can call it a caress.
बोलते हैं ना, इफ इट विल गिव यू वन मोर करेस। तो यहाँ पर भी आयरॉनिकली, मेटाफोरिकली दो चीज़ों को कंपेयर किया गया है और आयरॉनिकली एक सटायर क्रिएट करने की कोशिश की है कि तुम्हें दिखता तो वो हग होगा, बट दैट इज़ नॉट अ हग, इट्स अ सफोकेटिंग अटैक ऑफ द बेयर। आई होप मेटाफर समझ में आया होगा। लेट अस मूव टू द ऑक्सीमोरोन। वेरी इजी, वेरी इंटरेस्टिंग। ऑक्सीमोरोन होता है जब बिल्कुल दो उल्टे शब्दों को मैं एक साथ रख दूं, जैसे कि मैंने टाइगर इन द जू में पढ़ाया था, क्वाइट रेज, शांत गुस्सा। इज इट पॉसिबल? नहीं, वो क्योंकि उसे राइम करना था लेस्ली नॉरिस को, जॉर्ज लेस्ली नॉरिस को, सो ही यूज्ड क्वाइट रेज। एंड दोनों को साथ में लाने के बाद उन्होंने एम्फेसिस भी क्रिएट किया टाइगर इन द जू में कि येस द टाइगर इज फ्रस्ट्रेटेड येट ही इज मूविंग इन द cage in the confined space and he knows that he cannot do anything. So he is actually calming himself down, moving here and there. Deep down he is actually frustrated and quite enraged. यहाँ पर ऑक्सीमोरोन कहाँ यूज किया गया है? सबसे पहले नोबल और वाइल्ड। मैंने तुम्हें पोम पढ़ाते टाइम भी बताया था, नोबल का मतलब होता है कोई शांत, काम, सिविलाइज्ड। आई एम रियली सॉरी चिल्ड्रन। अ सिविलाइज्ड पर्सन, ठीक है, अ सिविलाइज्ड बीइंग। एंड वाइल्ड का तो, वाइल्ड क्या होता है? ऑपोजिट होता है सिविलाइज से। तो जब दो बिल्कुल ऑपोजिट टर्म्स हमारे सामने आ रहे हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? ऑक्सीमोरोन। यहाँ पर सेकेंड एग्जाम्पल इस ऑक्सीमोरोन का अगर हम देखेंगे तो ट्रू कैमिलियन। देखो, कैमिलियन कभी भी ट्रू नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि वो अपने अनुसार, अपने बैकग्राउंड के अनुसार रंग बदल देता है। सो डू यू थिंक देयर इज अ ट्रू कलर ऑफ अ कैमिलियन? There is no true color. Chameleon is bound to change. Chameleon is bound to create false images. तो उन false images, अगर मैं यहाँ पर chameleon को false image से replace कर दूँ, जैसे तुम mathematics में करते हो, ठीक है, अगर मैं यहाँ पर chameleon को false image से replace कर दूँ तो क्या अब तुम्हें दिख रहा है true, false? Don't you think it's contradictory? Yes, and that is why it is also the example of true chameleon, is also the example of your oxymoron. अब ये अच्छे से याद रखना, दो एग्जाम्पल है ऑक्सीमोरोन्स के। एंड नोबल वाइल्ड बीस्ट में हमने दो पढ़े हैं अभी तक लिटरेरी डिवाइस। एक पढ़ा है ऑक्सीमोरोन और दूसरा क्या पढ़ा था बच्चों? जल्दी से मुझे अभी लिख के बताओ, अभी इससे जस्ट पहले हमने पढ़ा था। Yes, you all are absolutely correct, my champions. That was metaphor. अभी हम देखते हैं रेपिटेशन। रेपिटेशन पे मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगी। जब एक वर्ड या फ्रेज पूरा पूरा रिपीट हो जाता है उसे हम क्या कहते हैं? रेपिटेशन। वर्ड लेप एंड लेप, ये लेपर्ड वाले स्टैंजा में था, एंड वेरी वेरी हार्ड हमारे बेयर वाले स्टैंजा में था। तो लेपर्ड के स्टैंजा में लैप एंड लेप, पूरा वर्ड वापस रिपीट हो रहा है, दैट इज लेपर्ड। एंड वेरी वेरी क्योंकि वापस से चेंज हो रहा है, रिपीट हो रहा है इन द स्टैंजा ऑफ बेयर, सो दैट इज व्हाई इट इज रेपिटेशन। आई होप ये भी समझ में आया होगा। चलो नेक्स्ट पढ़ते हैं हम लोग इंजैम्बमेंट। ठीक है, कॉन्टिन्यूटी ऑफ सेम सेंटेंस without continuity of the same sentence in the next line and without putting any punctuation mark or and all, उसे हम enjambment कहते हैं। यहाँ दिख रहा होगा, if ever you should go by chance, कोई क्वेश्चन मार्क, कोई कॉमा, कोई फुल स्टॉप, कोई आइफन नहीं है, कोई पंक्चुएशन मार्क नहीं है, और नेक्स्ट मतलब ये सेम लाइन में भी आ सकता था लेकिन इसको चेंज कर दिया टू जंगल्स इन द ईस्ट, और यहाँ पर पंक्चुएशन मार्क है, तो इस लाइन में हम क्या कह सकते हैं? ये क्या है बेटा? इंजैम्बमेंट। इंजैम्बमेंट तो तुम लोग मतलब ये तो ईजी है, सबसे ईजी है बताना कि किसी लाइन में इंजैम्बमेंट है या नहीं है। अंत में देखना है कि कोई पंक्चुएशन मार्क है तो इंजॉयमेंट है, नहीं है तो नहीं होगा, सिंपल। नेक्स्ट, पर्सोनिफिकेशन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिटरेरी डिवाइस। व्हाट इज पर्सोनिफिकेशन? जब मैं एक ह्यूमन लाइक कैरेक्टर किसी नॉन लिविंग थिंग या किसी एनिमल को दे देती हूँ तो दैट पर्टिकुलर थिंग इज नोन एज पर्सोनिफिकेशन। बच्चे कंफ्यूज करते हैं कि मैम लिविंग थिंग्स भी तो लिविंग थिंग्स को अगर हम लिविंग कैरेक्टर दे देते हैं तो क्या वो पर्सोनिफिकेशन होता है?
नहीं, लिविंग थिंग्स को अगर हम ह्यूमन एट्रीब्यूट्स दे देते हैं जो सिर्फ ह्यूमंस के पास होते हैं, जैसे मैं बोलूँ इतनी सिंपल सी बात, अगर इफ आई टेल यू दैट द टेबल इज सिटिंग इन द इन द बेसमेंट, तो क्या टेबल्स बैठती है? टेबल बैठती नहीं है। सिटिंग इज द एट्रीब्यूट ऑफ लिविंग थिंग, ठीक है, सिटिंग इज द एट्रीब्यूट ऑफ ह्यूमंस। सो जब हम टेबल के लिए वो सिटिंग यूज करते हैं तो वो रॉन्ग हो जाता है। टेबल इज केप्ट देयर राइट टर्म होता है, तो वो पर्सोनिफिकेशन हो जाता है। लेकिन अगर मैं किसी एनिमल के लिए ये बोलूँ, फॉर एग्जाम्पल इट इज, मैंने बोला आई हैव अ डॉग एंड ही इज वेरी स्मार्ट। अब यहाँ पे ही क्या है? ही एक ह्यूमन एट्रीब्यूट है, ये सिर्फ ह्यूमंस के लिए यूज होता है। लेकिन जब मैं किसी एनिमल को ही बोलना शुरू कर दूंगी तो ये भी क्या हो गया? पर्सोनिफिकेशन ऑफ द एनिमल हो गया। आई होप ये समझ में आया होगा। इस पोएम में क्या एग्जाम्पल्स है पर्सोनिफिकेशन के बेटा? द पोएट हैज यूज्ड ही इंस्टेड ऑफ इट फॉर द एनिमल्स। पोएट ने सारे एनिमल्स के लिए इट की जगह ही यूज किया है, सिमिलर टू दैट ऑफ टाइगर इन द जू, है ना। ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्राइप्स द लेंथ ऑफ हिज केज। फर्स्ट लाइन ही से शुरू होती है टाइगर इन द जू में, यानी कि टाइगर इज गिवन अ ह्यूमन एट्रीब्यूट, अ ह्यूमन प्रोनाउन ही। Similarly here, every animal is given a human pronoun, that is he, and that is why it is one of the prime examples of personification in the poem. Let us move to the next one. Weeping and smiling of crocodile and hyenas respectively. Weeping and smiling, देखो ये इमोशंस हैं। अगर मैं बोलूँ कि कोई एनिमल, एन एनिमल इज क्राइंग, एन एनिमल इज इंजॉइंग, एन एनिमल इज स्माइलिंग, सो दे आर एक्चुअली द ह्यूमन एट्रीब्यूट्स। वैसे हम लोग ऐसे जनरली कंसिडर करते हैं जो ये वाइल्ड बीस्ट होते हैं, दे आर अ बिट ऑफ, मतलब लिटरेचर में हम ऐसा सोचते हैं कि इतने ज़्यादा इमोशंस नहीं होते हैं, इवन इफ दे हैव, तो उनके इमोशंस वीपिंग और स्माइलिंग से हम कभी भी शोकेस नहीं कर सकते, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ह्यूमन इंटेंस इमोशंस को शो करता है। तो वीपिंग एट्रीब्यूट ऑफ क्रोकोडाइल एंड स्माइलिंग एट्रीब्यूट ऑफ हाइनास इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ पर्सोनिफिकेशन। अच्छा, यहाँ पर हम लोगों ने जो पोएटिक लाइसेंस पढ़ा था ना, इसमें मैं एक और चीज़ पढ़ाती हूँ तुम लोगों को। इसमें लेट मी जस्ट क्विकली रब इट ऑफ। आई होप अभी तक सारे के सारे लिटरेरी डिवाइसेस समझ में आए होंगे बच्चों। एंड कोई भी दिक्कत है, या इफ यू फील लाइक दैट देयर इज अ डाउट इन एनी लिटरेरी डिवाइस अदर देन दिस पोम ऑल्सो, यू कैन सिंपली राइट इट डाउन एंड आई विल श्योरली क्लियर योर डाउट्स। यहाँ पर एक और एग्जाम्पल है, वो है ना माइट, अ नोविस माइट नॉन प्लस। ये भी लिख लेना इसके साथ, अ नोविस माइट नॉन प्लस। अब देखो नॉन प्लस जैसा कोई शब्द होता ही नहीं है, मैंने पोअम के टाइम पे भी पढ़ाया था। द वर्ड, ये यहाँ पे जो फ्रेज होना चाहिए था, अ नोविस माइट बी नॉन, ऐसा होना चाहिए था, अ नोविस माइट बी नॉन प्लस्ड। ये है राइट टर्म, प्लस तो कोई शब्द ही नहीं होता, शब्द है नॉन प्लस्ड। जैसे होता है परप्लेक्स्ड, फ्लमक्स्ड, सिमिलरली होता है नॉन प्लस्ड। क्योंकि पोएट को जो लास्ट शब्द है दज, उससे राइम कराना था, तो पोएट ने कन्वीनियंटली SED को गोली मार दिया, हटा दिया, और नॉन प्लस और दज लिख दिया। एंड दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ योर poetic license. I'll show you with the help of the poem here. Can you see? Let me quickly share. A novice might non-plus. A novice might be non-plus would have been a correct grammar. ये बिल्कुल रूल्स के हिसाब से ये सही होता, लेकिन क्योंकि फोर्थ लाइन पे देखो दस बैठा है, दस्ड नहीं है, क्योंकि यहाँ पर साउंड किसका है? दस का साउंड है, तो पोएट ने कन्वीनियंटली प्लस्ड का SED हटाया और प्लस और दस को क्या कर दिया, यहाँ पर राइम कर दिया। एंड इसी की वजह से ये क्या है? पोएटिक लाइसेंस। क्या सबको समझ में आया? मेक श्योर यू ऐड दिस पॉइंट इज वेल। चलो, आई थिंक वी वर डन टिल हियर। नेक्स्ट, इमेजरी।
इमेजरी क्या होता है, मैंने बताया जब भी आपके 5 सेंसेस टच हों, किसी भी तरीके का सेंस एक्टिवेट हो जाए एक लिटरेचर की लाइन पढ़ के, वो हमारा इमेजरी होता है। एंड यहाँ पर क्या है, अ नोबल वाइल्ड बीस्ट ग्रीट्स यू विद ब्लैक स्ट्राइप्स विद येलो बैकग्राउंड। तो एक एक बड़ा सा टाइगर इमेजिन हो रहा होगा और वो कैसे एकदम रीगल तरीके से चल रहा होगा, रॉयली, द वे इन अ वेरी in a very royal manner the tiger is moving, इस noble wild beast को बोलते ही हमारे दिमाग में एक रॉयल टाइगर की इमेज क्रिएट होती है, and that is why it is imagery. And now we've come to the last literary device of our poem, that is irony. And मैंने बताया था ना, irony and metaphor same है, तो examples भी same होंगे. But if the question comes, a noble wild beast greets you, तो अब इसमें क्या क्या लिखोगे? इसमें मैंने तुम्हें 3 literary devices पढ़ा दिए, इनफैक्ट 3 पढ़ाए हैं, सबने 4 पढ़ा दिए. First is metaphor, second is your oxymoron, third is your imagery, एंड फोर्थ आई विल बी टीचिंग यू दी आयरनी. देखो आयरनी क्या होता है, अगर मैं एक वर्बल आयरनी की बात करूँ, लेटर टू गॉड में 3 टाइप की आयरनी मैंने पढ़ाई है. वर्बल आयरनी होती है जैसी जो चीज़ होती है मैं उसे वैसे ना कह के उसको उल्टा बोलूँ, टू क्रिएट अ सटायर, टू एक्चुअली प्ले सरकाजम ऑन द पर्सन. दिस इज व्हाट द वर्बल आयरनी इज. एंड इस पोम में वर्बल आयरनी का यूज़ किया है पोएट ने. फॉर एग्जाम्पल वर्बल आयरनी का मैं एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल देती हूँ. कोई बॉल्ड पर्सन, बॉल्ड यानी गंजा आदमी है, और अगर उसके कम बाल हैं तो हम लोग चिढ़ाने के लिए उसका एक्चुअल स्टेटस उसको बताने के लिए जनरली हम लोग हमारे फ्रेंड्स के साथ करते हैं ना कि वाह इसको प्लीज़ गेट अ कोम टू द मैन, ही रियली नीड्स टू कोम हिज हेयर. चिढ़ाने के लिए हम लोग ऐसा बोलते हैं, उसकी रियल सिचुएशन को उल्टा करके बताते हैं. सो दिस इज़ व्हाट वर्बल आयरनी इज़. या कोई बच्चा जो बहुत लेट्स से बहुत अच्छा नहीं होता, बहुत बदमाशी करता है, तो हम उसको ऐसे बोलते हैं, टीचर्स जनरली ऐसे बोलते हैं, हाँ हाँ यू आर द वेरी ग्रेट स्टूडेंट, यू आर एन अमेजिंग स्टूडेंट. वी ऑफन ट्राई टू केटर टू द सिचुएशन एंड बिल्कुल ऑपोजिट वर्ड्स यूज़ करते हैं चीज़ों को समझाने के लिए. दैट इज़ वॉट वर्बल आयरनी इज़. यहाँ पर क्या एग्जाम्पल्स है वर्बल आयरनी के? सबसे पहले है अ नोबल बीस्ट ग्रीट्स यू. नोबल, टाइगर इज नॉट नोबल, बट टू क्रिएट अ सटायर कि भैया दिखने में तो बड़ा रॉयल लगेगा, रीगल लगेगा, लेकिन आके तुम्हें ही खा जाएगा. तो इट्स नॉट नोबल एक्चुअली, द टाइगर इज नॉट नोबल. इट लुक्स वेरी नोबल, इट लुक्स वेरी इनोसेंट, वेरी रॉयल, वेरी रीगल, बट इट विल कम एंड ईट अपॉन यू एंड देन रेस्ट एंड लास्ट इज he'll give you just one more caress. कितनी प्यार से बोला है कि bear will give you one more hug, bear will gently touch you. But do you really think that the caress is actually the gentle touch here? नहीं, वो क्या है, वो एक्चुअल ही मतलब रियलिटी में वो क्या है, एक बहुत ही लीथल एंड फेटल हग है. जो बेयर है वो अपने विक्टिम को इतनी ज़्यादा ज़ोर से एम्ब्रेस करेगा हग से दैट ही और शी विल बी डाइंग आउट ऑफ सफोकेशन, एंड देन यू विल गेट टू नो दैट इट वॉज द बेयर. And these are the 2 examples of irony, or rather verbal irony in our poem. I hope यहाँ तक आपको सारे literary devices समझ में आए होंगे. And after this children, we are going to solve the questions of this particular poem. I hope I made this poem easy for you and the literary devices easy for you. And after this, you just be here only, and for your grade 10 preparations you please stick to Mission Gyan, and for English stick to your Komal ma'am. Bye bye all of you, take care.